Then associated with the scapula is this bone, clavicle है, ये clavicle है. ये भी आप बहुत सारे मसल्स इसके पढ़ चुके हो. सो क्लैविकल का ऐसा है कि मीडियल एंड ऐसा है उसका क्वाड्रेंगुलर, लैटरल एंड फ्लैट है. तो मैं इसको ऐसे भी पकड़ सकता हूँ या फिर ऐसे पकड़ सकता हूँ, लेकिन उसके नीचे एक ग्रूव होता है, ग्रूव. सो ग्रूव नीचे आना चाहिए. मैं ऐसे पकड़ूंगा तो ग्रूव ऊपर आता है, सबक्लेवियन ग्रूव. तो इसके लिए फिर मैं समझता हूँ कि कौन से साइड में, लेफ्ट. नहीं तो लोग ऐसा पकड़ते हैं बट ग्रूव ऊपर आ जाता है. सो दैट इज द रॉन्ग एनाटॉमिकल पोजीशन. इसके इट इज मीडियल 2/3, lateral 1/3. Medial 2/3 will have 4 surfaces: anterior, superior, posterior, inferior. Lateral 1/3 is flat, so it has only 2 surfaces, superior and inferior, and it has 2 borders, anterior and posterior. Anterior border and posterior. Medial end forms a joint. Medial end forms a joint with manubrium and posterior. Manubrium, which is sternoclavicular joint. Sternoclavicular joint. And the lateral end forms the joint with acromion. Lateral end forms the joint with acromion. तो ऐसा है, lateral end forms the joint with acromion. तो one thing you have to understand, मैंने आपको स्कैपुला के मोमेंट्स बोले थे: प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन, ये फॉरवर्ड रोटेशन है. जब हम एबडक्शन करते हैं ना, तो ये यहाँ से घसरने का चांस रहता है. किधर गए हमारे लोग? नया वर्ड, घसरना, घसरने, टू स्लिप. मी घसरले, मी घसरलो. ह्यूमरस, घसरला. क्यों घसरला? बिकॉज लेनार्ड इज शार्प. तो ये क्या करता है स्कैपुला, सो दैट इट डजंट स्लिप, इट डजंट घसरोफाई, इट गोज लाइक दिस. तू जहां जहां चले, मैं तू जा रहा है तो मैं तेरे साथ है, सो दैट यू डोंट स्लीप. सो दिस मोमेंट इज. But one thing you have to understand, that all these movements cannot happen without the help of clavicle. These movements are called as movements of shoulder girdle. एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है शोल्डर, तो 5 बार देखने का, 5 बार. क्या है? जॉइंट या गर्डल, जॉइंट या गर्डल. फिर पिंच करने का खुद को, जॉइंट या गर्डल. लोग गर्डल पूछते हैं और जॉइंट लिख के आते हैं. आउट ऑफ 10 यू गेट 0 मार्क्स. Shoulder joint is formed by glenoid, the shoulder joint, glenoid and humerus. Shoulder girdle is composed of 2 joints: the sternoclavicular joint, which is a compound, complex joint of synovial, saddle synovial vertebrae. When is a joint called compound? When more than 2 bones are there. When there are more than 2 bones involved, it is called as compound. When it is called complex, when there is presence of articular disc. So this is compound because there is clavicle, there is sternum and first rib. 3 bones are involved. And there is an articular disc in the joint, so it is complex. Sternoclavicular joint is a compound, complex synovial joint of saddle variety.
What type of joint is sternoclavicular joint? Question asked in 1998 batch for the first MVHS batch. उसमें ये क्वेश्चन पूछा था. Explain. So students only had to write it is compound because there are more than 2 bones. It is complex because there is presence of articular disc. Okay. Compound, complex. Lateral end forms a plane joint with the acromion. तो देखो अभी जब प्रोट्रैक्शन, जब एलिवेशन डिप्रेशन हो रहा है तो क्लाविकल, ये स्कैपुला जब एलिवेट होता है तो क्लाविकल का मीडियल एंड डिप्रेस होता है. ये जब डिप्रेस होता है तो क्लाविकल का मीडियल एंड एलिवेट होता है. सो इसका एक्सिस ऑफ दिस मूवमेंट इज पासिंग एट द मीडियल. ये दो मेरे फिंगर्स हैं. इट्स एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस. एलिवेशन डिप्रेशन एक्सिस कहाँ पे? एक्सिस मीडियल एंड ऑफ द. कैसा है एक्सिस? एंटीरो पोस्टीरियर. When protraction retraction happens along the vertical axis passing from here. So ये vertical axis. Protraction, retraction, protraction, retraction, protraction, retraction. So axis of elevation depression is anteroposterior, passing through medial end of clavicle. Axis for protraction, retraction. Axis मतलब ऐसा सोचो यहाँ से एक आपने स्क्रू डाल दिया और पकड़ा, जैसे मेरे ये 2 फिंगर्स, तो उसके अराउंड ये मूवमेंट होगा ना, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन. तो प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन का एक्सिस क्या है? वर्टिकल. एलिवेशन डिप्रेशन का एक्सिस क्या है? एलिवेशन डिप्रेशन का एक्सिस, जिसको सुन के डिप्रेशन आ रहा है हाथ ऊपर करो. मैं वापस बताने को तैयार हूँ. किसी को नहीं समझा हाथ ऊपर करो. ओके. सी एक्सिस म्हणजे आता तुम्ही झोक्यावरती बसता, आप झूले पे बैठते हो तो उसका एक्सिस ऊपर रहता है, उसके अराउंड वो झूला ऐसा ऐसा घूम रहा है. सीसॉ पे बैठते हो तो उसका एक्सिस बीच में होता है, उसके एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रहा है. तो ये अगर मूवमेंट ऐसा हो रहा है प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, तो इसका एक्सिस किधर है? तो प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन का एक्सिस ऐसा जा रहा है, ये दो मेरे वर्टिकली जा रहा है. प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन एट द मीडियल एंड. एलिवेशन डिप्रेशन जब हो रहा है तो एक्सिस एंटीरो पोस्टीरियर है. एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन. अभी फॉरवर्ड रोटेशन बैकवर्ड रोटेशन में एक्सिस क्लाविकल में से जा रहा है. ओके. clavicle muscles, pectoralis major, anteriorly, sternocleidomastoid, sternocleido, मतलब इसका एक हेड स्टर्नम से है. कोप्रा, लक्ष्य दे माझ्याकडे, मेरी तरफ देख रहा है क्या तू? हाँ, थैंक यू. स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, ये मसल है हमारा. स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड पे इंसर्ट होता है. स्टर्नो मतलब एक हेड स्टर्नम से है, क्लाइडो एक हेड क्लाविकल से. स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड उसका हेड है. नीचे सबक्लेवियन ग्रूव, जहां से सबक्लेवियस, पेक्टोरलिस मेजर, देन सबक्लेवियस, स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड. लैटरल एंड तो आपको मालूम है, anteriorly deltoid, in origin posteriorly trapezius. बरोबर कि नहीं? यहाँ पे हमने ऐसा ड्रॉ किया था ना. ये क्लैविकल है तो डेल्टॉइड ऐसा ओरिजिन लेता है क्लैविकल के लैटरल 1/3 से. ट्रेपेजियस यहाँ पे इंसर्टेड है क्लैविकल के लैटरल 1/3 से पोस्टीरियरली, फिर एक्रोमियन इसमें. बराबर. डेल्टॉइड विल गो लाइक दिस. एंटीरियर बॉर्डर पे डेल्टॉइड, लैटरल 1/3, पोस्टीरियर बॉर्डर पे ट्रेपेजियस.
अभी दो इम्पोर्टेंट लिगामेंट्स है जो आपको समझने हैं, जिसको जाने जा सकते हैं स्वास्थ्य के लिए अभी भी, हाँ जा सकते हैं। स्टिल इफ यू फील कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स और उसमें टाइम लगता है, बट आई एम अपलोडिंग दिस, आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक्स मिलने चाहिए शाम को। और तू जा रहे ओके। So there are two strong ligaments. There are two strong ligaments, one at the medial end and one at the lateral end of the clavicle. Costoclavicular ligament, जो क्लैविकल के मीडियल एंड से फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज को जाएगा, ओके, एंड कोरैकोक्लैविकुलर लिगामेंट जो कोराकॉइड प्रोसेस से क्लैविकल को जाएगा। सो जो भी हम वजन उठाते हैं वो ये लिगामेंट में से क्लैविकल में जाता है, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं लिगामेंट, और ये लिगामेंट में से फर्स्ट रिब, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम पीछे। तो ऐसे मत समझो कि मैं, अरे मेरे को स्लिप डिस्क क्यों हुआ यार, मैं तो ये हाथ से वजन उठा रहा था, इधर का क्या कनेक्शन है? नो, वजन वॉट एवर यू पिकअप वेट गोज लाइक दिस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, ग्लिनॉइड, कोराकॉइड प्रोसेस, कोरैकोक्लैविकुलर लिगामेंट, क्लैविकल, कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट, sternum, all ribs, vertebrae, hip joint and down. इसके लिए खचाक करके वजन नहीं उठाने का कभी भी। Go like this, ऐसे नहीं उठाने का। हमारे बॉलीवुड के मोस्ट ऑफ द हीरोज दे सफर फ्रॉम स्लिप डिस्क। वो हीरोइन ऐसे ऊपर से भागते हुए आती और ये नीचे ऐसा खड़ा रहता है, और वो जैसे आते हैं उसको ऐसे उठा लेता है, ऐसे उठा लेता है, फिर उसको स्लिप डिस्क हो जाती है। तो हीरोइन भाग के आई तो उसको बोलेगा रुक, एक मिनट, मेरे सर ने हमको बताया कैसे करना, फर्स्टली नीज को फ्लेक्स करना, आ बिल्कुल किसी भी चीज को ऐसे नहीं उठाना है आज के बाद। ओके, शादी में, विधि में आपको बताया, प्री वेडिंग शूट में वाइफ को उठाओ, बोलेगा रुको, नीज को फ्लेक्स करना, पकड़ना, फिर उठाना। जब आप ऐसा करके ऐसा उठाते हो ना, सी व्हाट इज हैपनिंग, इस पूरा प्रेशर इधर आ जाता है। जब आप ऐसे करके उठाते हो तो आपके नीज पे और इस पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। द मसल्स इन्वॉल्व्ड इन डूइंग दिस are your thigh extensors as well as back extensors. When you lift something like this, only the back extensors. When you lift something like this, 50% knee extensors, 50% back extensors. So this is how things are to be lifted. Airport, common place जहाँ पे slip disc होता है, because 22 kg का 2 बैग्स इंटरनेशनल ट्रैवल में अलाउड रहता है, और हमारे इंडियन लोग लास्ट मिनट तक क्या हो रहे हैं, 21.7, अरे और 300 ग्राम ला रहे, वो तवा वो देते हैं अपन, वो आंटी को देने का था उधर शिकागो में। मैं जब गया था, कहाँ पे गया था मैं, फिलाडेल्फिया, तो वहाँ पे इंडिया के 16 टीचर्स को बुलाया था, उसमें से मैं एक था, और पूरा स्पॉन्सर्ड ट्रिप एकदम, टीचिंग टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, एंड यू नो
We used to train on how to teach when I was at KEM. तो फिर किसी का तवा, किसी का पोलपाट लाटना, तो उनको फ़ोन करके मैं यहाँ शेरेटन होटल में रुका हूँ, आप आइए नीचे, आपका पोलपाट लाटना मेरे पास है, मैं देता हूँ। फिर नीचे अच्छा आपका क्या तवा है क्या? सब ये आपका तवा। फिर मैं पहुंचा उधर 15 अगस्त 2007। उस दिन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल था। फिर हमको उधर लेके गए, सबको $20 दिया, बोले तुम जो चाहे खा सकते हो। तो उधर गया तो भेल वाला, तो मैं बोला कितने का है? बोला $5। अपन सब कैलकुलेट ना, 5 × 80 400। ठीक है, देख भूख तो लगा था ना, उन्होंने बोला यही खाने का तुमको, $20 दिया। मैं फिर अपना यूजुअल स्टाइल में बोला भाई जरा पापड़ी मारना ऊपर से थोड़ा, तो पापड़ी का $3 कर रहे हैं। पापड़ी का $3 में 240। मुझे चाहिए क्या? नहीं नहीं तेरा पापड़ी तो सुखा पूरी को भी पैसा मांगा, मालूम है उन्होंने। मैं पानी पूरी खाया होगा, मेरा सुखा पूरी बोला $1। तो मरोगे तुम लोग सारे से। इतना इंडिया का याद आया ना, बाद में मैं वापस और एक इंसिडेंट बताऊंगा, अभी नहीं। अभी इतना सुबह सुबह उठ के आए हो। तो ये 2 लिगामेंट्स, ये आपके माइंड पे मैंने अभी इतना स्ट्रेच करके रखा है। सो आई हैव विद दिस आई हैव प्रिवेंटेड प्रोलैप्स इंटरवल डिस्क इन 150 पीपल। अभी दूसरा, ये वेट, हाथ का वेट, हमारे मतलब लिम्स का वेट ट्रंक को ट्रांसफर करते हैं। 2 लिगामेंट इनको इतना स्ट्रांग बनाया है कि आदमी अगर गलती से गिरा, फिसल के मतलब घसर के ऐसा गिरा ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, तो पूरा वेट ऐसा जाता है, यहाँ से यहाँ नीचे पूरा बॉडी वेट, और इधर फ्रैक्चर होता है। दिस इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ क्लैविकल at the junction of medial 2/3 and lateral 1/3, वहाँ पे फ्रैक्चर होता है। उधर फ्रैक्चर होता है, कहाँ पे फ्रैक्चर होता है? जंक्शन ऑफ मीडियल 2/3 एंड लैटरल 1/3। क्यों मालूम है क्या? ये 2 लिगामेंट इतने स्ट्रॉन्ग होते कि दे डोंट ब्रेक, क्लैविकल ब्रेक्स, और पेशेंट को इधर दर्द होता है, और फिर हम बताते हैं इधर फ्रैक्चर होता है। क्या इधर फ्रैक्चर? इधर क्या डॉक्टर है तुम? मैं गिरा इधर का कुछ नहीं, इधर को फ्रैक्चर नहीं, इधर को नहीं, इधर कैसा फ्रैक्चर है? तो फिर उसको बोलने का ये जो लेक्चर है अपलोडेड है, देखो 22 अक्टूबर का, तुम पूरी शांति से बैठ के देखो। फिर हमारे टीचर ने पूरा दिखा है कि घसरने के बाद, गिरने के बाद वेट कैसा ट्रांसफर होता है। तो ये 2 एंड्स के लिगामेंट इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो नहीं टूटते हैं, और क्लैविकल का ये वीकेस्ट पॉइंट है, इसके लिए वो टूटता है। सो फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड, द clavicle may get fractured. So this is about muscle attachments of clavicle. Clavicle, the name clavicle comes from the word key. पहले के ज़माने के कीज ऐसे रहते थे, बड़े 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 ताले, और उसमें ऐसा की। So it comes from the word key. Clavicle has many characteristic features. Only long bone whose shaft is curved, which is pierced by a nerve. Okay, 2 ossification centers, primary. Just check this out. And membranocartilaginous ossification. Some bones are membranous ossification. Long bones, cartilaginous ossification. Clavicle and mandible, membranocartilaginous ossification. They develop from membrane as well as, okay. Their ends are not covered by articular cartilage. Ends are covered by fibrocartilage.
मैंडिबल एंड क्लाविकल, ये दोनों दोस्त है. मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस ossification. Okay, so characteristics of clavicle: only long bone which shaft is curved. It is pierced by supraclavicular nerve. That is bone which is pierced by nerve. Okay, so two primary ossification centers होता है, but just check that out. So this is about the clavicle. Okay, two strong ligament, costoclavicular and thoraco. Pause. Stop.